लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतम् क्योंकि बाहर के शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। जैसे जय श्री राम। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव विद अस respected Swami Vimlananda ji. She is from Genuine Mission in Coimbatore, Kerala. So I have a formal introduction, but before that I will talk a little bit informal. It's, what is in destiny that only Lord knows. So some 25 years ago, at different occasions I might have mentioned at this forum, I had good fortune to become a business school director in Ahmedabad. It was then called Nirma Institute of Management. And I don't know why they gave me that position. They must have regretted it later on. So we organized an international conference on management, which is a typical academic conference. Professors come, they talk about their research, marketing, finance, operations management, and accounting, strategy. So that time, I got in touch with Swami, and with some courage, I invited her to come and give us a talk to our audience, which was of management professors, management students. And many of my colleagues were wondering, this Dr. Gupta has gone a little cynical. Why he's inviting us for a Swami? What they have to do with management? So I said, look, I'm taking my own risk. So maybe you'll fire me from my job, but worst can happen. And the Swamiji very so generously, kindly accepted our invitation. She came, and I still remember her talk, how she gave her message to the management students. There was no lecture baji on spirituality in a conventional sense. It was really down to earth what management students in the management faculty can take away with them. So this is my memory goes back. I think it was 98, if I'm trying to remember. My memory isn't very good, but whatever it is, 1998. And they said, wow, Dr. Gupta, what a great experience. I mean, look, this is all management is about. We need to experiment and look. And now we say, oh, when are we getting her next? We'll try. And then we will be able to get her one more time for another conference. And we had the opportunity to listen to her. After that, I've listened to her at some other occasions on some spiritual discourses. So it's our delight, your love today, that today is probably the best day in a year and a half that we've been meeting. So that's my experience, and I can't help but share that with you. Now, when we think about Swami and Swamini, we just think about we have some stereotype in mind.
But if you look at her background, she is B.Tech architectural engineering. Then you say, oh, what architecture engineering is doing here? So that is the beauty of it. But she very early on became a disciple of Gurudev Swami Chirmananji. After acquiring her honors degree in architecture, as I said, her travels made her reflect on life and move from designing of the world of outer space to the seeking of the sacred inner space. The Chirman Mission Vedanta course deepened her spiritual knowledge. Her passion for education found fulfillment in concretizing her Guru's vision into the Chirman Mission program, which now largely reflects in the national education policy, which was recently introduced by Government of India. Her multifarious contribution in the field of education, as she headed the Chirman Mission Education Cell for 25 years, touched the lives of millions. She's a dynamic leader, a serious seeker, a spiritual practitioner, a prodigious learner, a visionary educator, a nature lover, a prolific writer, and a popular speaker. Travels around the world, as you could guess, guiding seekers of all age groups. Her simple style of talking has captivated the intellectuals and faithful alike. Her sense of aesthetics and depth of knowledge reflects in all her activities, including her writing. She has authored books on a variety of subjects, Vedantic commentaries, Indian culture series, answering youth queries, child-centered activities, and education theories. Her books are very popular, as are her YouTube talks. So this is my great honor, indeed, very great honor and privilege to welcome respected Swaminiji. She will talk about Navratri and Dashera. You know, we just had Navratri and Dashera. So very appropriate topic to talk on. After we have opportunity to listen to her, she has generously offered to answer our questions. So maybe, you know, so there's no confusion. You can put your question in the chat and I read those questions out. So there's, you know, not too many voices are at the same time. So as you have a questions in the chat, I don't put it multiple times, I'll get confused myself. And after that, you know, let's just, and also basic things. Please turn on your videos if you can. You know, I always say that, and today Swaminiji also reinforced that I like to see your face. So beautiful faces God has made as human being, right? They didn't make us, you know, animals, you know, so we can show our face. So let's turn our videos on as much as we can, unless there's some strong reason not to do so. And also keep your self muted, because any disturbance is always distracting. So with that, I most respectfully invite Swaminiji to give your talk. Jai Shri Ram, Hari Om, Pranam. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री महागणपतये नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ओम श्री महासरस्वत्यै नमः समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम and namaskar to one and all. आज का विषय बहुत रोचक है। नवरात्रि और 10वां विजय दिन
9 nights and the 10th victorious day। मैं हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण में बात करूंगी। फिर कोई लोग ऐसे होंगे शायद जो अंग्रेजी प्रेफर करते हैं, या कोई होते हैं वो हिंदी में बात ये करना चाहते हैं, तो बीच बीच में मैं हिंदी से अंग्रेजी करते रहूं। पहली बात तो ये है कि भारतीय संस्कृति में एक होते हैं संस्कार। संस्कार जो होते हैं वो कौटुंबिक प्रसंग होते हैं, उत्सव होते हैं। जैसे कि जन्मदिन है, बच्चे का जन्म होता है, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, शादी होती है, उपनयन होते हैं, नामकरण विधि होती है। तो ये कौटुंबिक प्रसंग है जहां मनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से धाम धूम से मनाए जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ वो विशेष परिवार के अंदर या उनके जो मित्रगण है और ऐसे इसमें बनाए जाते हैं। तो वो संस्कार कहते हैं। और ये एक एक जीव, हर जीव जो होता है उसमें ये संस्कार डालने के लिए ये सब प्रसंग किए जाते हैं, जन्म से लेकर मरण तक। अंत में अग्नि संस्कार होते हैं, वो भी कौटुंबिक चीज है, प्रसंग है। दूसरे होते हैं, उसको कहते हैं उत्सव। उत्सव वो क्या होते हैं कि वो समाज के स्तर पे मनाए जाते हैं। हमारे देश में बहुत ऐसे, भारत में बहुत ऐसे प्रसंग है जहां हम उत्सव करते हैं। आई थिंक भारत उत्सव प्रेमी देश है, क्योंकि वो एक मौका ही देखते हैं उत्सव मनाने के लिए। कुछ न कुछ कारण आता है और हम क्या करते हैं, we go into a mode of celebration. If you see the number of celebrations that are there in India, I don't think any other country has so many celebrations. Do you agree with me? By the way, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आप लोग हाँ ना एक स्माइल करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इधर एक स्क्रीन से बात, जो पहले हम व्यक्तिगत रूप से जब लोगों से बात करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अब एक स्क्रीन से बात करने में आधा मजा तो चला ही जाता है। लेकिन आप लोग अगर अपनी स्क्रीन ऑन रखें, मुंह दिखाए, स्माइल करे, कुछ तो कुछ ये करे, तो फिर हमको बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक्सप्रेशन से हमको बता सकते हैं कि आप जो है पसंद करते हैं या मन में प्रश्न आते हैं कि जो भी है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि भारत जो है उत्सव प्रेमी देश है। अलग अलग मौके होते हैं कि जहां हम उत्सव मनाते हैं, और हमारे जो उत्सव होते हैं वो बिल्कुल 100% कहें तो भगवान से जुड़े हुए होते हैं। जो भी उत्सव होते हैं वो हर कोई ना कोई ढंग से भगवान से जुड़े होते हैं। कोई जो उत्सव होते हैं वो भगवान के आविर्भाव, अवतार के दिन होते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है वगैरह। कई कई जो उत्सव जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, जैसे कि होली और बसंत पंचमी। फिर भी उसको भी भगवान से जुड़ा जाता है। सभी जो जो प्रसंग होते हैं, भले सीजनल भी हो, बसंत पंचमी हो, ऋतु के लिए उत्सव मनाते हैं, फिर भी भगवान से जुड़ा जाता है। कोई होते हैं विशेष देवता के उत्सव होते हैं, जैसे कि नागपंचमी या संकष्ट चतुर्थी। तो ये विशेष एक देवता, एक गणेश जी के रूप से या एक नाग देवता के रूप से उनके लिए उत्सव मनाए जाते हैं। तो अलग अलग ढंग से हम उत्सव मनाते हैं। और आनंद, मेन पर्पस क्या है उत्सव मनाने का, अंदर से उत्साह पैदा करना। देखो उत्सव में क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। उत्सव, उत यानी ऊपर, सव माने असवह माने अपने प्राण। जब हम आनंद में होते हैं तो हमारे प्राण ऊपर उठते हैं, यू एंजॉय। हम डल होते हैं तो हमारे प्राण भी डल हो जाते हैं, हम नीचे गिरते हैं, बिल्कुल हमारा शरीर भी नीचे गिरता है। और ये आनंद में होते हैं तो पूरा ये सब प्राण ऊपर उठते हैं, उत्सव। तो उत्साह जब होता है, उत्सव होता है, तो आनंद और बड़ा एक वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जिसमें समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू। पहले से अभी
अभी दिवाली आएगी, हमारे देश में तो अभी नवरात्रि तो समाप्त हुई, अब क्या होने वाला है, अब दिवाली आएगी, और दिवाली समाप्त होने से कुछ न कुछ आते ही रहता है, एक भी महीना खाली नहीं जाता। आप पंचांग देखेंगे तो कुछ न कुछ तो होगा ही। हमारे जो रेगुलर सोमवार तो होता ही है, मंगलवार आता है, दूध आता है वगैरह जो आते ही रहते हैं, और वो भी एक एक देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। सोमवार यानी शिव भक्त के लिए है, मंगल यानी ये, कोई ना कोई कुछ न कुछ होते ही रहता है, एक दिन खाली नहीं जाता है, ये उत्सव मनाने का मौका मिलते रहता है। अब हम विशेष रूप से फोकस करेंगे, हमारा ध्यान करेंगे किसके ऊपर, नवरात्रि का उत्सव जो है उस पर, उसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि हमारे देश में अभी मैं देखती हूँ कि ज्यादातर जो ऑनलाइन आए हैं वो थोड़े उम्र वाले हैं, यंग लोग नहीं है इतने। तो क्या है, हमारे यंग लोग जो होते हैं ना, because they don't know, they are not proud of our culture. One of the main reason is that. How can I be proud of something I don't know anything about? And sometimes, unfortunately, क्या होता है, there is also a feeling of a shame. How can I have shame when I know there is something wonderful that I can be proud of? And that is why मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा काम है, बुजुर्गों का काम है, बड़े लोग का काम है कि ये जो है, ये ज्ञान है, हम अपने बच्चों को और अगली पीढ़ी को ये बताएं। Otherwise, it dies away. See, all culture and everything exists in people. Without that, it doesn't exist. So therefore, our attempt should always be to involve as many youngsters as possible. And that will only be possible if you give it to them in a way that they understand, a way that they relate to, a way that they can feel completely proud and not think everything is only something glory of the past, कोई विशेष चीज पूर्व काल में कुछ ग्रेट चीज हो गई थी और अभी रेलेवेंट नहीं है, ऐसे कहेंगे तो उनको they will not have that feeling. अभी नवरात्रि का प्रसंग है, पहले देखेंगे बाद में विजयदशमी पर आएंगे। तो पहले हम ये शब्द देखेंगे नव। तो नव यानी 9, एक अर्थ है नव यानी 9। दूसरा अर्थ है नव यानी नवीन। ओके, वन इज 9, नव संख्या जो है नव 9। संख्या के रूप से देखेंगे कि जो नव है, 9 है, वो पूर्ण संख्या मानी जाती है। इवन न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे क्यों पूर्ण संख्या मानी जाती है। 9 2 18, 1 + 8 9, 9 3 27, 2 + 7 9, 9 उसके करते रहेंगे। आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, सो यू कैन हेल्प मी आल्सो। 36, 3 + 6 9, है ना। यू कीप ऑन डूइंग दैट, keep on doing। 63, 6 + 3 9, 81, 8 + 1 9, keep on doing it, you keep on। जो भी संख्या आएगी मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, उसका सम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आते रहेगा, उसको पूर्ण संख्या मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि ये नवरात्रि है, वहां पूर्णता आती है, नव में पूर्णता है। ये 9 दिन क्यों बताए, 10 दिन क्यों नहीं बताए, 8 दिन क्यों नहीं बताए, 9 दिन बताए गए हैं, क्योंकि पूर्णता प्राप्त करने का एक अवसर है। फिर दूसरी बात है नव। नव यानी क्या, नवीन, न्यू। एंड वी ऑल नो दैट वी लाइक एवरीथिंग व्हिच इज न्यू। हमेशा, वी ऑलवेज हैव दिस थिंग न्यू, and that is why everything that is sold in the market is also new. Actually it will be old wine in new bottle, but that's the thing, we like it। जैसे ही नवीन की बात आती है, न्यू दिस न्यू, कभी तो सिर्फ कलर बदलते हैं या कुछ ये बदलते हैं, लेकिन हमको क्या लगता है, और हर साल हम देखते हैं कि न्यू फीचर्स आर देयर इन द what do you call it, the iPhone। तो हर रोज we keep on taking, the latest नवीन। कुछ नहीं होगा ज्यादा, पहला वाला जो उसके फीचर्स भी हमको ठीक से बराबर नहीं पता होगा, अभी नवीन लेंगे तो क्या फर्क, कुछ नहीं होता है, कोई ऐसे नहीं कि नवीन चीज आएगी, लेकिन क्या है, I've got the latest, I've got the best, I've got the newest।
ऐसे तो नवा जो होते हैं, नवीनता जीवन में वी ऑल वांट, अदरवाइज हम बोर हो जाते हैं, लाइफ मैकेनिकल हो जाती है, एक ही एक चीज कहाँ करते रहेंगे, ऐसे मन में आ जाता है। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन यू से ओह इट इज अ न्यू थिंग, सो नवरात्रि मींस दैट व्हिच ब्रिंग न्यूनेस टू लाइफ, enlivens us and gives us पूर्णता। इस अभी आते हैं हम रात्रि शब्द पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नवरात्रि उत्सव कहाँ है? रात्रि। अभी रात आप देखेंगे तो रात में बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गुण हैं। क्या है? पूरे दिन में थकावट होती है, रात को क्या मिलता है? चैन मिलता है। आप देखिए रात में क्या होता है, यू फील यू नो लाइक oh now let me rest, you become rejuvenated when you have a good night's sleep at night, in the good sleep in the night. Is it true or not? You become rejuvenated. और पूरी जो भी अपने अंदर की शक्तियां हैं वो नवीन हो जाती है, we feel good about it. रात में the family comes together. दिन में सब लोग अपने अपने काम में जाते हैं, रात को क्या होता है, सब साथ में मिलते हैं। आजकल कोई मिलता नहीं अनफॉर्चुनेटली, सब अपने अपने रूम में जाते हैं और अपना अपना टीवी, अपने अपना जो भी जो देखते रहते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, सब लोग साथ में आते थे, एवरीवन यूज्ड टू ईट टुगेदर, साथ में बातचीत करते थे, प्रेम से भाव से सब लोग साथ में आते हैं, इंटीमेसी होती है, bonds are made, relations are forged in that darkness of night. Softness, intimacy, ये सब चीजें आती है रात के साथ में। दिन में रजोगुण होता है, इधर उधर भाग दौड़ होती है, यहाँ वहां जाते आते हैं। लेकिन रात में क्या होता है? शांति होती है, रेस्ट होता है। तो यहाँ है नौ रात है क्या कि जहां हमारे मन में शांति आए, इंटीमेसी आए, प्रेम आए, शुद्ध भावनाएं आए और हम रिजुवेनेट हो जाए। तो ये बात आती है रात में। अभी देखिए रात में अंधकार होता है। देखो कालापन, काला एक रंग है जो सफेद का ऑपोजिट है। ब्लैक इज अ कलर व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाइट। अंधकार में कालिमा होती है, लेकिन अंधकार एक कलर नहीं है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अंधकार एक कलर नहीं है, उसमें कालिमा है, कालापन दिखता है, लेकिन वो काला रंग जैसा नहीं है। उसमें क्या है? अंधकार में प्रकाश का अभाव है और कुछ नहीं है। Darkness is only the absence of light. It is not a thing by itself. It is only the absence of light. The minute light is brought, the darkness is dispelled. You don't have to do anything. अंधकार को निकालने के लिए कुछ ऐसा नहीं कि कुछ पोंछना पड़ता है, उसको कुछ ड्राई क्लीनिंग करना पड़ता है, या ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता है। सिर्फ प्रकाश। और सालों सालों का अंधकार हो, अगर कोई गुफा हो, if there is a cave which has been in darkness for centuries together, all we have to do is bring one lamp, a light, and that centuries of darkness gets dispelled just like that. समझे? तो रात्रि जो होती है उसमें क्या होता है कि जो अंधकार, हमारे भारतीय संस्कृति में अंधकार हमेशा अज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए हम हमेशा सुबह में भगवान के सामने भी दीपक जलाते हैं, है ना? दीपक जलाते हैं। तो क्या अंधकार को ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, क्या कहते हैं? हमको तमस नहीं चाहिए, अंधकार नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ज्योति चाहिए, अज्ञान नहीं चाहिए। अज्ञान से हमको निकालकर ज्ञान तरफ ले जाओ। तो ये है कि 9 दिन तक अंधकार, लंबा अंधकार है, लेकिन 10वें दिन क्या होता है? दिन आ जाता है, प्रकाश आ जाता है और विजयता आ जाती है। कितनी बढ़िया बात है कि नहीं? 9 रात और 10वें विजय दशमी
वो रात को नहीं मनाई जाती है। विजयदशमी कब मनाई जाती? दिन में मनाई जाती है, जहाँ सूर्य प्रकाशित होता है और दिन में मनाई जाती है। तो 9 लंबी 9 रात के बाद में क्या होता है? विजय आता है। जब अंधकार का नाश होता है और प्रकाश जीवन में आ जाता है तो क्या होता है? आनंद आनंद विजय आ जाता है। ओके, फिर अंधकार की एक और बहुत ही सुंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अंधकार क्या करता है कि दूसरे सबका समावेश, देखो अंधकार में कोई डिफरेंसेस नहीं, अलगता नहीं दिखती है, बड़ा छोटा लंबा काला गोरा कुछ कुछ नहीं दिखता है। जब अंधकार होता है तो सभी भेदभाव अपने आप से मिट जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है अंधकार की, कि जो भेदभाव, जो वृत्ति है हमारी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर, दिस इज बेटर, दिस इज वर्स, नथिंग, ऑल ऑफ इट गेट्स कंप्लीटली डिमोलिश्ड। हमारे मन में आप देखिए कि हम लोग है, मनुष्य है, उसमें कितने भेदभाव बनाए हुए हैं, कितने, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये अरे रामा। और हम भारत में तो इतने अलग अलग प्रांत है, तो बस नॉर्थ एंड साउथ में भेद कर दिया, और एक ने उसमें भेद कर दिया, और जाति का भेद और लिंग का भेद, और क्या न क्या। मनुष्य मन ही ऐसा है, भेद उत्पन्न करने में बड़ा कुशल होता है कि नहीं? भेद उत्पन्न करने में और भेद में बहुत रमते रहते हैं। We feel very good only when we talk of all the differences. हम लोग भी कहते हैं, you know, I am not like that, I am different from this, I don't think of this, I am, हर बार हमारा भेद, we try to become different and unique and think of ourselves also as different from everyone. So भेद भाव पर जब हमारा भार होता है तो क्लेश जरूर होते हैं. Is it true or not? The minute differences are emphasized, clashes start. When oneness is emphasized, everyone comes together in harmony. There is happiness. The minute differences become important, we become separate from each other. We become alienated with each other. And what happens is, unfortunately, that becomes our only reality. तो नवरात्रि में क्या करना है? हमारे भेदभाव को मिटाना है. रात के जैसे सब भेदभाव मिट जाते हैं, वैसे हमको भी क्या करना है? सब भेदभाव को क्या करना है? मिटाना है. अब देखिए, रात में हम सोते हैं, है ना? जब हम सोते हैं तो गरीब सोता है या अमीर सोता है, भारतीय सोता है या अफ्रीकानी सोता है, कोई भी सोता है, तो वो सोने में जो आनंद मिलता है उसमें कोई भेद होता है? The joy of deep sleep is the same for everyone. It is something you don't have to pay for. You just sleep and you are in happiness. All other happinesses or so-called pleasures we have to buy. Everything we have to buy and become happy. But this is a happiness which Bhagwan has given to everyone equally. There is no such thing that these happiness that a king enjoys in his deep sleep is greater than the happiness that someone else. No, it is the same. I tell you, sleep is the greatest equalizer in the world. Is it a fact or not? There is no. It is just the greatest equalizer. सबकी नींद जो एक बराबर होती है, उसमें जो आनंद होता है वो समान होता है. कोई ये नहीं, एंड सबने ये आनंद अनुभव किया है. कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने ये आनंद अनुभव नहीं किया है. कितनी बढ़िया बात है. और उस आनंद में न नाम है, रूप है, गुण है, वेश है, देश है, लिंग है, कुछ नहीं है. There is no world at all. And what a beautiful thing that we have all experienced this objectless happiness. हम कहते हैं कि वस्तु में ही आनंद मिलता है, वस्तुओं के बिना आनंद नहीं मिलता है, संबंध में ही आनंद है, संबंध के बिना आनंद नहीं होता है, परिस्थिति में ही आनंद है, परिस्थितियों के बिना, अनुकूल परिस्थितियों के बिना आनंद नहीं है. लेकिन आप सबने अनुभव किया है कि नहीं किया है?
कोई लोग अभी भी करते होंगे, क्या पता, सुनते सुनते सो गए होंगे शायद, तो उनको यही आनंद मिलता होगा। बोले ये तो बोर हो रहा है, इससे बेहतर तो क्या है, वो निर्विषय आनंद में हम चले जाते हैं और सो गए होंगे, है कि नहीं? तो हम देखते क्या है कि रात में ये निर्विषय आनंद मिलता है। इसलिए नवरात्रि का अर्थ होता है कि ऐसे निर्विषय आनंद में, ऐसे भाव में हम जाए कि जहां कोई जाति वाति कोई भेद नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है, ऐसा मनाए। अब कुछ और बात देखिए, नवरात्रि जो होती है उसमें आप देखेंगे तो मुख्यतः शक्ति उपासना होती है ना। अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है। हमारे देश में ये पता नहीं, भारतीय संस्कृति में, हिंदू लोग में ये पता नहीं ये गलत बात कहाँ से घुस गई और निकलती ही नहीं है। जैसे अगर पूछा जाए कि भाई हिंदू कितने भगवान में मानते हैं, तो सब कहते हैं अनेक भगवान में मानते हैं। तो ये बात बहुत ही गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये अगर मेरे इस प्रवचन से या इस बात से बस ये अगर ये बात निष्ठा आ जाए ना उसमें, तो आई थिंक आई विल बी सक्सेसफुल इन व्हाट आई एम सेइंग। देयर इज ओनली वन एंड वन एंड वन एंड वन गॉड अलोन। हम लोग सिर्फ एक भगवान में मानते हैं, अलग ईश्वर में मानते नहीं है। हिंदू लोग महान है, बड़े प्रेम से बड़े भाव से गाएंगे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर और अल्लाह को एक बनाएंगे, लेकिन कृष्ण और शिव को एक नहीं बनाएंगे, है कि नहीं? मान महापुरुष है हम लोग। ईश्वर अल्लाह एक है और हम ही कहेंगे नहीं नहीं ईश्वर अल्लाह एक है, इट इज नॉट डिफरेंट, देयर इज ओनली वन। Wonderful. Then why in your heart do you have the differences that Shiva is different from Ganesha and Ganesha is different from Devi and Devi is different from Rama and Rama is different from Hanuman and Hanuman is different from Krishna? Why is this difference? We must remove this thing. There is only one and one God. There are different forms. And there are different stories and different incarnations, but God is one. Is that okay? That should never leave our head at any time. Whether we worship Ram or Krishna or Devi, it doesn't matter. So therefore, when we are saying कि ये 9 दिन तक हम देवी की उपासना करते हैं, I prefer to say हम शक्ति की उपासना करते हैं than to say देवी की उपासना करते हैं। I will explain why I'm saying that. देखिए, एक कवि होता है और कवि और उसकी कविता, उसकी कवित्व का जो टैलेंट है वो तो अलग नहीं होते हैं। वो कवित्व कवि में होता है। कवित्व के बिना कवि कवि नहीं कहा जा सकता है। A poet has poetry inherent in him. Without this poetic talent, a poet cannot be called a poet. He's not called a poet at all. Okay? Poet means he has the poetry in him. वैसे ही जैसे ही हम ईश्वर कहते हैं, तो ईश्वर निहित शक्ति उनमें है ही। शक्ति के बिना ईश्वर ईश्वर हो ही नहीं सकते हैं। Is it okay? शक्ति के बिना ईश्वर ईश्वर ही नहीं होते हैं। हम उसको कहते हैं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो शक्तिमान है। शक्तिमान में शक्ति निहित होती है। शक्तिमान में से शक्ति निकाल दे तो शक्तिमान शक्तिमान नहीं है, वो तो अशक्त हो गया। समझे? सो ईश्वर में उनकी शक्ति निहित है, वो अलग हो ही नहीं सकते हैं। ईश्वर और शिव शक्ति एक है, अलग नहीं है। हम उसको अलग करेंगे तो उसको अर्थ नहीं। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो शक्ति की उपासना करते हैं, और शक्ति की पूजा करते हैं तो ईश्वर की करते हैं। दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। इज इट ओके?
This is very very important to understand. पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि शक्ति is not a स्त्रीलिंग, वो एक शब्द के रूप से स्त्रीलिंग है. As a word, it is a feminine word, it is a feminine noun, but by itself, power is not masculine or feminine or neuter. There is no gender to power. For example, electricity is not feminine, it is not masculine, it is not neuter, it is a power. Is it okay? In a language, you may call it whatever you want to call it, but by itself, it is not a power. Having understood that, हम जब कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि I prefer to use नवरात्रि में, instead of saying देवी उपासना, I prefer to say शक्ति उपासना. Is that okay? You understood why I'm saying that? It is शक्ति उपासना. हम शक्ति की ये करते हैं. देखिए, इसका अर्थ नहीं, जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो ऐसा अर्थ नहीं है कि ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं. अरे शक्ति ईश्वर में होती है तभी तो हम उनकी ये शक्ति की उपासना करते हैं, ईश्वर की शक्ति की उपासना करते हैं, अलग शक्ति की होती नहीं. जो भी शक्तियां हैं वो सब ईश्वर में ही है, भगवान में ही निहित है. इसी शक्ति को हम माया कहते हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रधान, प्रकृति, अलग अलग नाम देकर कहते हैं, लेकिन वो शक्ति और शिव एक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है. हाँ, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के रूप से हम शिव और पार्वती ऐसे दो करते हैं. जब उनका मैनिफेस्टेशन होता है, व्यक्त होते हैं, तो वही शिव शक्ति जो ईश्वर है वो एक रूप से, एक शक्ति के रूप से, एक शिव के रूप से, एंड पार्वती के रूप से, शक्ति और शिव ऐसे दो अलग वही ईश्वर के क्या है रूप प्रकट होते हैं. It's the manifestation of that one Ishvara only as what? Shiva and Shakti, as Uma and Parvati and Mahesha, Uma Maheshwar. समझे? As Brahma and Saraswati, as Vishnu and Lakshmi, as what? Shiva and Parvati. But it is that same power. It's not different. ईश्वर में क्रिया शक्ति है, उत्पन्न होने की शक्ति है, स्थिति की शक्ति है और प्रलय की शक्ति है. तो इसलिए ये तीन एस्पेक्ट ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, और उनकी शक्ति को क्या कहते हैं? सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती कहते हैं. लेकिन है सब कोई क्या है? एक ही है. इज दैट ओके? वेरी क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को एक ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है. एक बार क्या हुआ, शिव भगवान और पार्वती जी बैठे थे, कैलाश में विराजमान थे. उनके सामने बहुत सारे गण बैठे थे. इतने में भृगु ऋषि वहां आ गए. भृगु ऋषि आए और उन्होंने पार्वती को देखा ही नहीं और सिर्फ शिव भगवान की प्रदक्षिणा की उन्होंने. तो पार्वती जी को आया बड़ा गुस्सा. बोले क्या समझते हैं, मुझे इतना इग्नोर करते हैं, मैं यहाँ बाजू में बैठी, आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, and he completely ignores me and just does pradakshina. He says, no, I only consider Shiva is great and Shiva is everything, no one else is there, for me only there is Shiva. तो देखा शिव भगवान ने कि पार्वती जी क्या हो गए, थोड़े गुस्से हो गए. तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, थोड़े पास में आकर बैठ जाओ, पास में, मेरे पास में आकर बैठ जाओ. तो पास में आकर बैठ गए. तो भृगु महाराज तो महान थे, उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ शिव को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ. उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण कर दिया और शिव और पार्वती के बीच में से ऐसे गए और शिव भगवान का प्रदक्षिणा करके आकर बैठ गए सामने. तो पार्वती जी को और गुस्सा आया, बोले ये क्या बात है. तो शिव भगवान ने कहा ऐसे करो, मेरे गोद में आकर आप बैठ जाओ, फिर तो आप हमारे पास में ये दे. तो बैठ गए गोद में, और ये हमारे महापुरुष है. उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करते हो. उन्होंने छोटा सा एक तितली का रूप ले लिया और दोनों के बीच में थोड़ी तो जगह थी ना, वहां से ऐसे करके प्रदक्षिणा करके आ गए. अब तो आप सोच सकते हैं पार्वती जी का गुस्सा. अरे ये हिम्मत, समझते क्या है. तो भगवान शिव ने कह दिया कि अरे तो मेरी अर्धांगिनी है, तो मेरी अर्धांगिनी बन जाते. तो क्या किया,
शिव और पार्वती दोनों एक हो गए। अब भृगु महाराज को कहा, अरे अभी आप क्या करेंगे? भृगु महाराज तो भृगु महाराज है, वो तो एक महान पुरुष है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं एक भ्रमर का रूप लेता हूँ। उन्होंने छोटा सा एक भ्रमर का रूप लिया। उन्होंने यहाँ अंदर से छेद करके सिर्फ शिव भगवान की प्रदक्षिणा करके निकल गए। आप सोचो, हाँ, पार्वती से रुका नहीं गया और उन्होंने भृगु महाराज को शाप दे दिया। बोले, ये शक्ति की अवहेलना करते हो, आप शक्ति के बिना शक्तिहीन हो जाओ, आप कृश हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे। और अरे पार्वती जी का ऐसा शाप, यानी बेचारे भृगु महाराज ऐसे ये हो गए, उनकी शक्ति ही चली गई। इतने तो शिव भगवान को लगा, अरे ये मेरा अच्छा भक्त है, उसको क्या कर दिया ये पार्वती जी ने। उन्होंने भृगु महाराज को एक और पैर दे दिया। वो दो पैर पे खड़े भी नहीं रह सकते, तो ये ना ट्राइपॉड जैसे होता है ना, वैसे एक और पैर दे दिया। बोले तुम खड़े रहो, 3 पैर पे खड़े रहो, क्योंकि वो खड़े भी नहीं रह पाते थे, इतने वीक हो गए। फिर पार्वती जी ने पूछा कि अरे तुम्हारी हद हो गई, इतने क्रूश हो गए, मैंने ये किया, फिर भी आप छोड़ते नहीं कि भगवान शिव ही है, ये है, ये क्या अर्थ है? तो शिव भगवान ने कहा कि अरे तुम उसको पूछो कि उसका अर्थ क्या है, ऐसे उस पर गुस्सा होकर उनको खुश बना देने का क्या फायदा? ये अच्छा मेरा भक्त है, महान है, तुम ऐसे मत करो, उसको पूछो। तो पूछा कि भाई क्यों ऐसे किया आपने? बोले, आपके मन में ऐसा है कि शिव और पार्वती अलग है। पार्वती जी को कहा कि आपके मन में है। भगवान ने भी कहा पार्वती जी को, इतना ही कह दिया हो, एक है, हम दो अलग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी भी प्रदक्षिणा कर लेंगे। समझे क्या? अगर आपने इतना ही कह दिया होता कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक है, ऐसा नहीं कि हम अर्ध अर्ध है और हम अलग है, या नहीं, एक ही है, अगर इतना ही बोल दिया होता तो क्या होता? मैं दोनों की प्रदक्षिणा करता। समझे? तो ये बात आपके मन में आ गई अभी बिल्कुल ठीक से, क्या कि शिव और शक्ति एक है, दो अलग नहीं। मतलब मैं की ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक आप प्रश्न के रूप से है ना चैट बॉक्स में रख दीजिए, उसके बाद में हम ये करेंगे। पहले मैं सब ये कर लेती हूँ, उसके बाद में हम सब ये करेंगे। तो हम देखते हैं कि शिव शक्ति एक है। अब ये 9 दिन में हम क्या करते हैं, यही शिव जो है, अब ये शक्ति जो है, जैसे कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो हम क्या करते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, जो उनकी एक पत्नी के रूप से हम उनको देखते हैं, तो ये उनकी शक्ति की उपासना करते हैं। तो पहले 3 दिन दुर्गा माता की उपासना करते हैं, दूसरे 3 दिन लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, और तीसरे 3 दिन सरस्वती जी की उपासना करते हैं। उसका अर्थ क्या होता है कि दुर्गा जो है, दुर्गा माता अपना जो घोर रूप लेकर हमारे सब दुर्गुणों का नाश करती है। तो एक बार हमारे दुर्गुण नाश होते हैं तो दुर्गा देवी का काम है कि भाई हमारे दुर्गुण को नाश करो, हमारे में काफी सब दुर्गुण पड़े हैं, उस सब का नाश करो। एक बार हमारे दुर्गुण का नाश हो जाता है तो हमें संपत्ति हम भरो। 3 दिन क्या कहते हैं, make us prosperous, make us rich in virtues and values and good qualities। तो 3 दिन लक्ष्मी उपासना होती है कि हमें सद्गुण भरे, हम अच्छे अच्छे गुण भाव जो है हमें लाए और उससे हम क्या बने, समृद्ध बन जाए, दुर्गुण नाश करे, सद्गुण भरे। जैसे कि ऐसी बात होती है ना, जिसको डायबिटीज होता है, उसको एक चीज है कि ये नहीं खाना चाहिए, है ना, वो स्वीट नहीं खाए और दवाई ले, दोनों भी करना पड़ता है ना, तो वो दोनों, तो हम क्या करें, दुर्गुण को नाश भी करें और सद्गुण को भरे, दोनों चीज करनी पड़ती है, नाश भी करें और भरे भी। और तीसरी, जब हम ये जब करते हैं तब हमारा मन तैयार हो जाता है, दुर्गुण नाश हो गए, सद्गुण आ गए, हम ज्ञान के काबिल होते हैं,
महान ज्ञान के काबिल होते हैं, जिसके द्वारा हम अपना कल्याण करके विजय प्राप्त कर सकते हैं या 10वें दिन में। Have you understood? So दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती ये जो होती है। अब यही जो 9 दिन होते हैं उसको नव दुर्गा की उपासना भी मानते हैं। आपने सुना होगा नव दुर्गा का नाम तो कहा है प्रथमम शैलपुत्री च, पहला क्या है, पहले जो ये है शैलपुत्री, शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री। सो देखिए दिस इज अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ भारतीय कल्चर, हमारी संस्कृति का एक बहुत ही ये सुंदर एस्पेक्ट है। क्या है कि हमारे देश में एक स्त्री है, फीमेल है, उसकी पूजा जो होती है बचपन से लेकर वृद्ध हो तब उसकी पूजा होते हैं। Not only when she is young and beautiful and good looking and all that. No, we worship her from the childhood to this. Now, please remember, this is the culture which is telling us to do that. Whether we as Indians actually do that or not is a different issue altogether. Let's not get into that at all. We should do that because this is our culture. We should be doing. This is what it teaches us. नव दुर्गा का जो रूप है अगर आप देखेंगे उसका एग्जैक्टली ये अर्थ है। प्रथमम शैलपुत्रीम च, पहले क्या शैलपुत्री यानी when she is a small child, she is worshipped when she was a young girl, एक very young, and when a child is born it becomes the center of our entire world. Is it true or not? एंड जब हम पुत्री का जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी प्रकट हुई घर में, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? We always say लक्ष्मी जी घर में आई, बोलते हैं, मानना भी चाहिए, समझिए बोलना ही नहीं मानना भी चाहिए कि लक्ष्मी जी घर में आ गए। As a small child we worship her, we love her, we pamper her, we cuddle her। फिर कहते हैं दूसरा जो है द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, क्या कहा, दूसरा जो है ब्रह्मचारी में कुमारी, कुमारी के रूप में हमारे देखते हैं कि हमारे देश में कुमारी की पूजा होती है। This is a very important age where she is worshipped again. She is worshipped as a young girl, as a teenager. She is also again worshipped, not just as a child, even as a teenager. And then her potential, her inherent potential starts coming out. Thinking capacities come out, etc. And then she is worshipped. Then after that as what? Chandraghanta, the third Durga जो रूप है वो दुर्गा लेती है तृतीयम चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है she is now marriageable age. She gets married. As a newly wedded woman, naturally she is, the husband loves her very much and the family, the new family accepts her and all. The third रूप is what? पहला छोटी बच्ची का, फिर teenage girl, then a married woman. As a married woman she is worshipped. And then what? Kushmanda. Kushmanda means when she is pregnant. In our country, a pregnant woman is very much worshipped. It's all countries, we all respect a pregnant lady because she's, carrying a child, your own child. She's going to give birth to your future, child, and therefore she's worshipped. We say कुष्मांड रूप से उसकी पूजा होती है। फिर पंचमम स्कंद माता च, then when she becomes a mother. And in our country सब चीज माँ, भारत को भी माता कहते हैं और गंगा को मैया कहते हैं, सब मैया ही है हमारे लिए, है कि नहीं? हम भारत को कोई ये नहीं कहते हैं, भारत हमारे लिए माता है, गंगा भी मैया है, सब हमारे लिए माँ है। और माँ के रूप से तो उसकी बहुत बुरी बुरी पूजा होती है। स्कंद माता, पंचमम स्कंद माता च, और षष्ठ जो छठा जो है कात्यायनी। कात्यायनी क्या है? यानी मिडिल एज। When she is middle age also she is Katyayani, she is worshipped by all of us. And then what? Saptami बोले कालरात्रि। कालरात्रि is when she is in her menopause. कालरात्रि, now she is becoming, aging and all. And कहते हैं तब वो क्या पहनती है? She wears a
anklet of thorns, meaning what? She becomes agitated. You all know many women who have themselves gone through menopause, they know, and the husbands also, everyone knows, the full family understands that menopause, how difficult sometimes it can become, agitated, the person becomes, so many other things, changes in the body, changes in the mind, so many things can happen to the woman at that time. So it is said over here, that is what Kala Ratri Church is called, Kala Ratri. That's the seventh form, the seventh form of this, and then Ashtama, which is that Ashtami. So it is said Mahagauri, now in the old age. And you know what happens, Mahagauri? She becomes quiet, she becomes Shanta. Everyone, you know, जो वो जब ये जो क्या कहते हैं hormonal changes वगैरह सब शांत होते हैं, मन शांत हो जाता है. Everyone becomes, you know, you also become peaceful and you don't care now so much. Acha, give up, give in, it doesn't matter, it's okay. You know, you let go so many things and all that, you become like that. So Mahagauri. And the ninth Navadurga, when she's about to go, pass away, this is called Siddhidatri. She is willing to give everything. सिद्धि सब कुछ देने को तैयार है, बस अभी मेरा समय हो गया है, आप सबका जो भी है वो आपका है. The loving, kind, everything, whatever is mine is all yours, and she gives everything. This is called Navadurga. So in the Navaratri, every day one form of Durga is worshipped. What a beautiful thing to worship the lady right from a child to the time when she becomes old and passes away. This is the beautiful worship of God in the divine woman form. Now, this is another great thing about Indian culture. A very, very great thing. See, दूसरे इसमें भगवान की पूजा मेल रूप में ही होती है ज्यादा से मैनिफेस्टेड, लेकिन हमारे ही देश में ऐसी है कि वी ऑल के, अरे हमको बताया गया यू कैन वर्शिप गॉड इवन इन अ फीमेल फॉर्म. It doesn't matter because God is not a male or a female. Then why should you only worship him as a male? No, I can worship him as a female if I want to. This freedom is one of the most beautiful things of Indian culture. Is it true or not? What a wonderful thing. Which other culture allows you to do that? That you can worship God even in a female form. What a great freedom we have. You know, only like that and only God has this form. No, no, no. He can take up any form. He can even take up a female form and you can worship him even as a female form. Now, I'll tell you just one or two names of this Parvati, etc. to make you understand. And you know, if you read Durga Saptashati, that is one of the things that people read during the Navaratri jobs. दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं, काफी लोग पढ़ते हैं, आप में से भी काफी लोग ने शायद पढ़ा होगा दुर्गा सप्तशती. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. उसमें क्या है ना, हम लोग सिर्फ कथा सुनते हैं ना, तो कथा का अगर अर्थ समझ में नहीं आता है तो हमको लगता है कि ये क्या कथा है, ये असुर को मारा, ये ससुर को मारा, ये ससुर को मारा, इतने सारे रूप हो गए, इतना ये आयु किया, तो बोर हो जाते हैं और समझ में नहीं आती है. और फनी स्टोरीज आ गए, कुछ ये नहीं होता है, पढ़ना है इसलिए पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको लगता है कि ये ऑल नॉनसेंस है, ऐसे लगता है. Even when I first read it, I said, what is all this? But once you start understanding the meaning of it, then you understand, wow, these are such beautiful stories. You know, so let me just give you example of one or two of them. Then you understand how, when you read all these things also, how we do Shakti Upasana, then you can understand. First of all, the form of Devi. See, the very form. She's got many hands. Durga has got many hands. Meaning what? If you want to accomplish anything, you have to be a multitask. You should and you should have many hands to support you. Is it a fact or not? कुछ काम सिद्ध करना है तो एक व्यक्ति अपने आप से करे और 5 लोग हाथ लगाए तो जल्दी से हो जाएगा ना. 5 लोग हाथ लगाएंगे तो इसलिए दुर्गा क्या है? शी इज ऑल केपेबल. बहुत सारे हाथ हैं उनके and many arms. She has got different arms and combinations in different this. यानी अलग अलग प्रकार के instruments, all the yantras that are available possible she has got. She's a master of all of them, and she can use any at any time to accomplish what she wants to accomplish. कितनी बढ़िया बात है. See, if I have many gadgets or many instruments and I can use them as and when I want, isn't it a great achievement? I can do so many things. I can achieve so many things because I use whatever I want to do and achieve whatever I want. So therefore, it shows this also.
अभी दुर्गा जी है तो आप देखेंगे कहीं कहीं आप देखेंगे कालिका का रूप लेते हैं, काला घोर रूप लेती है, कहाँ कहाँ बहुत सौम्य है, कहाँ हंसवाहिनी के रूप से है और कहाँ सिंहवाहिनी के रूप से है। सिंहवाहिनी के रूप से यानी क्या कि ये जो सिंह जो होता है वो क्या है, घोर है, यू नो इट कैन ईट एनीथिंग एज दिस, एंड हंस है वो विवेक शक्ति है। तो हंस वाहिनी का क्या है, उसका अर्थ विवेक कर सकती है, हंस प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड नॉट डू, हाउ आई शुड डू इट, व्हेन आई शुड डू इट। ये विवेक शक्ति जो है वो यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये सब प्रतीकात्मक अर्थ है देवी का। I won't go into more of this, but I'll give you one or two examples from the Durga Saptashati कि बताने के लिए कि ये जो स्टोरीज जो है वो बिल्कुल ऐसे वैसे स्टोरीज नहीं है, बिल्कुल घर जो अर्थ है वो बहुत गहरे अर्थ सहित ये सब बनाए गए। अभी एक मैं ये देती हूँ एग्जाम्पल। एक स्टोरी आती है रक्त बीज की। तो देवी जो होती है उनके सामने रक्त बीज नाम का असुर आ गया। तो वो रक्त बीज को मारे और क्या होता था, रक्त बीज को एक ऐसा एक आशीर्वाद था कि जब भी उसका एक भी बूंद रक्त का जमीन पर गिरता था तो एक बूंद में से दूसरा रक्त बीज निकल आता था। तो जितनी बार वो मारने की कोशिश करे तो उसका रक्त तो अलग अलग हजारों रक्त बीज खड़े हो जाते थे। तो देवी मारते जाए और नए 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 खड़े हो जाते थे। अब देवी के मन में आया कि ये रहस्य ये है कि ये रक्त जो है जमीन पे गिरे तब ये होता है, जमीन पे गिरने ही नहीं दी। और उन्होंने क्या कर दिया, पूरा जैसे ही रक्त बाहर निकले उन्होंने अपने जीवा से उसको गल लिया, उसको ले लिया, और जैसे जैसे वो निकलने लगा वो हो गया, वो क्या हो गया, रक्त बीज बिल्कुल रक्तहीन हो गया और मर गया। यू अंडरस्टैंड, ही गॉट दिस राइट। अभी देखिए हमारे इसमें भी यही होता है, रक्त बीज जो है ना अहंकार का प्रतीक है, और हमारा अहंकार है ना, it keeps getting multiplied and multiplied and in different forms and different, पता नहीं क्या क्या रूप लेता है, अलग अलग ढंग से प्रकट होते रहता है। और क्या होना चाहिए, उसको जब हम निगल जाते हैं तब क्या होता है, नाश हो जाता है। जब तक नहीं तो नए नए रूप लेकर खड़े ही होते रहता है हमारे सामने। महिषासुर मर्दिनी, ये नाम बड़ा फेमस है माँ का, महिषासुर। महिष यानी कौन, बुल। हम भी बड़े बुल हेडेड होते हैं, बुल हेडेड यानी स्टबर्न, जिद्दी, है ना। हमारे मन में कुछ आ गया बस खत्म, यही चीज होगी और ऐसे ही होगा, यही चाहिए, ये तो इसके बिना मैं चलूंगा ही नहीं है। We become so stubborn in our views, we become stubborn in our this, become, you know, एक चीज पकड़ी और बस गलत भी हो तो नहीं, ये मेरा विचार है, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये स्टबर्ननेस तो निकलना ही पड़ेगा। उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो कैसे मारते हैं, अनेक देवी एक रूप धारण करते हैं, अनेक अनेक लोग एक में शक्ति भर देते हैं और वो एक आकर वो मार देती है। चंड और मुंड ये बहुत बड़े हैं, दूसरे दो असुर थे, भाई थे, चंड और मुंड। चंड का अर्थ होता है क्रोध, और मुंड यानी अपना सर सर यानी हमारी बुद्धि, ये क्रोध अहंकार, दूसरा प्रतीक है अहंकार का, ये मुंड है, ये अहंकार का ही प्रतीक है। तो पहले चंड को मारा, बाद में मुंड को मारा देवी ने। चंड यानी क्रोध, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जब तक रहते हैं ना तब तक अहंकार जाता नहीं है। ये काम क्रोध ये है ना, अहंकार को बचा के रखते हैं, याद में रखना। पहले किसको खत्म करना पड़ता है, काम क्रोध लोभ को खत्म करना पड़ता है, तब अहंकार जाके मरता है, उसके बाद में मरता है, पहले नहीं मरता है। अहंकार रहता ही है, सब कुछ चीज में रहता है। और एक अहंकार का रूप क्या होता है पता है, मेरे में कोई अहंकार ही नहीं है, ये सबसे बड़ा अहंकार है। देखो कहते हैं धन जन यौवन का अहंकार है ना, बड़ा स्थूल है, लेकिन भक्ति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, ये निरभिमानता का अहंकार, ये जो है ना वो खतरनाक अहंकार है। धर्म का अहंकार, ये बहुत खतरनाक अहंकार होते हैं।
तो पहले ये दूसरे चंड चंडिकाओं को मारना पड़ेगा, गुस्सा वगैरह को, और उसके बाद में चंडिका क्या करती है, मुंड को भी मारती है, और चंड मुंड को मार, शुंभ निशुंभ ये सबको मारकर फिर विजयता प्राप्त होती है। ऐसी बात होती है। अभी लास्ट में बहुत सारी बातें कहनी कि 9 दिन की ये नवरात्रि मनाने के बाद में 10वां दिन है वो विजय का दिन माना जाता है, विजय का दिन माना जाता है। और अब सबको पता है कि उसी दिन भगवान रामचंद्र जी ने रावण का मर्दन किया, नाश किया, है ना। और कहते हैं कि भगवान राम जी ने आदित्य हृदयम नाम का एक स्तोत्र है, आई डोंट नो यू नो, उसका पाठ किया। आदित्य यानी सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य की प्रार्थना की, और फिर उसके बाद में क्या किया, रण मैदान में आए और रावण का नाश किया। अब सबको पता है, ये कथा तो आप लोग रामायण पढ़ते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। यानी क्या, 9 रात्रि के बाद में दिन जो है, सूर्य जो है वो क्या, किसका प्रतीक है, दिन का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो रात्रि के बाद में किसका हम आह्वान करते हैं, अज्ञान के हम ज्ञान का आह्वान करते हैं, प्रकाश का आह्वान करते हैं और विजयी बनते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? बहुत सारे आध्यात्मिक अर्थ है, भगवान राम ने कैसे उनको मारा, रावण को मारा, क्यों मारा और कैसे मारा, ये सब में भी बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ है। बस इतना ही कहने का ये है कि हमारे देश में ये सब नवरात्रि है, विजयदशमी है वगैरह, ये सब उत्सव के मौका है जब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, हमारे व्यवहारिक संबंध को बढ़ा सके, प्रेम आनंद में रह सके और एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आनंद का लेन देन। और देखिए हमारे जो भी उत्सव होते ना, खाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज इट ट्रू? We are all, what you say, I always say we are all centered around our stomach, मध्य प्रदेश। हम लोग सब बड़े पेटू लोग होते हैं, और मध्य खास करके भारत में तो हर उत्सव में अलग अलग प्रकार की खान पान की बातें आते रहती है। नवरात्रि है, विजयदशमी है, और विजयदशमी के दिन आयुध पूजा भी होती है। आयुध पूजा होती है क्यों? क्योंकि भगवान ने भी ये अपना जो बाण है उसका ये किया और उसके बाद में रावण को मारा। और विजयदशमी के दिन में क्या करते हैं, विद्यारंभ होता है। जो बच्चे होते हैं उनके जिह्वा के ऊपर ओम एंड मधु के लेकर उनका विद्या, मीनिंग तब से उनका पढ़ाई शुरू होता है। यहाँ दक्षिण भारत में तो जो भी स्कूल्स होती है उसमें एडमिशन जो होता है विजयदशमी के बाद में करते हैं बच्चों का, केजी क्लास में, इसमें भी बोले तब तक नहीं। और उस पर ये है ना, जिह्वा पर ये विद्यारंभ का संस्कार होता है। ये देते हैं, जिह्वा के ऊपर ओम लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः, भगवान का नाम लिखते हैं, हरि लिखते हैं, ऐसे मधु से। और फिर अंगूठी होती है, उससे हाथ से बच्चे को लिखवाते हैं चावल के ऊपर। आपने देखा होगा कि नहीं, ये पता करते हैं, नॉर्थ में शायद नहीं करते हैं, लेकिन साउथ में तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। सब बच्चे को ये विद्यारंभम का संस्कार दिया जाता है, उसके बाद में पढ़ाई शुरू करते हैं। अब जो भी है वो बाद में, तो 2 साल 3 साल तक की उम्र में, 2 3 4 साल में ये सब शुरू हो जाता है। उसके बाद में स्कूल में जाते हैं, वो लोग केजी क्लास में, बाल मंदिर में, मॉन्टेसरी जो भी करवाना है वो करवाते हैं। तो ये दिन जो विजयदशमी का दिन भी है, बहुत ही अच्छा त्योहार है, उसमें भी बहुत सारी मान्यता होती है। दक्षिण भारत में जो खास करके तमिलनाडु में नवरात्रि के दिन वो लोग गोलू रखते हैं। गोलू यानी अलग प्रकार की क्या कहते हैं, टॉयज कहे कि अलग प्रकार के ये सब रखते हैं घर में। आपको देखना चाहिए, इतना पूरा घर भरा होता है और अलग अलग थीम्स होती है, भगवान की अलग अलग थीम्स होती है, इतना सुंदर ढंग से डेकोरेट करते हैं। सब लोग आते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी के, गणेश के टाइम पे अपने घर में गणेश जी रखते हैं, ऐसे यहाँ दक्षिण में गोलू रखते हैं। और आपको पता है कि बंगाल वगैरह में तो
देवी की मूर्ति रखते हैं और फिर विसर्जन होता है, जैसे गणेश जी का विसर्जन होता है, जैसे देवी का भी विसर्जन होता है। तो हमारे देश के अलग अलग भाग में ये त्योहार बहुत ही अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। और आज आप सबने मुझे एक मौका दिया कि नवरात्रि और विजयदशमी पर चिंतन करने के लिए, इसलिए मैं आभारी हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप गुप्ता जी से बताइए और गुप्ता जी मुझे पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगी आपको जवाब देने के लिए। हरिओम और नमस्कार। हरिओम हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बोली आप। बहुत ज्ञानप्रद रहा, बहुत ज्ञानप्रद, मालूम नहीं था। दिमाग के पट खोल दिए आज आपने पूरे, इतने दिन से बंद पड़े थे। बहुत बहुत उत्तम स्वामिनी जी। If anyone has any question, please you can ask me. If you can direct it to him, it will be easier. Otherwise, Thank you so much, Swamini ji. You said so many new things. I can't hear you properly, Gupta ji. You have to talk a little louder. Yeah, sure. Yeah. Thank you very much. Can you hear me now? Yes, a little louder still, because there's a Little lot louder, of okay. rain happening over here in the Oh, background. a lot of rain happening because of that. Yeah. So okay. Yeah. So thank you so much. I just first I wanted to thank you for delivering such a knowledgeable talk. I would say almost everything was new to me. You know, the interpretation of Shakti from childhood to Siddhidayini. So anyway, I don't want to take up my time in making those statements. So I think we have some time. Any of you have any question, you can put in the chat box as Swaminiji prefers, because there's a lot of rain going on there. So it's difficult for her to hear. So आप मुझे chat में लिखें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर अगर आप बोलना ही चाहें तो If everyone talks loudly, anyone who has a question, because there's a lot of rain, so there's a lot of background sound. I won't be able to hear you otherwise. Yeah, right. Yeah. So please, speak loudly or put in the chat, then I'll try to speak loudly. सर एक क्वेश्चन है, इस टॉपिक से हटकर है, तो वो मैं यहाँ पर रखूं या नहीं? मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं answer the questions related to the topic, and afterwards, if there is time, we can do that. हाँ, तो वो आपका मतलब किस तरह से मैं अलग से उस क्वेश्चन को मेरे जो आप इस पर चैट पर डाल दीजिए, फिर मैं देखता हूँ, अगर समय होता तो पूछता हूँ। ठीक, रेफरेंस में देती हूँ कि जैसे ही मुझे नाम मालूम पड़ा कि आज आप बोलेंगी स्वामिनी जी, तो कल मैंने आपका एक ऑडियो सुना था जूम मीटिंग की। We'll first talk about related to this topic, and after that, if there is time, we'll take up another topic. Right? We'll do that. ओम जी से उसके विषय में लिखूं? हाँ, लिख दीजिए प्लीज। हाँ, प्लीज लिख दीजिए। हाँ, प्लीज लिख दीजिए प्लीज। उनको डायरेक्ट नहीं भेजा जा सकता? आप चैट में लिखिए ना, क्यों इतना समय ले रही हैं? हाँ मलिक जी प्लीज। सॉरी, नहीं, मैं सिंपल है कि विजयादशमी में अंत में उन्होंने कहा कि वो दशमी के दिन राम जी की रावण पर विजय की है। मेरे विचार से बाद में ऐड किया गया है, फिर ओरिजिनल में तो देवी का कहीं विजय होती है सब राक्षसों पर, तो उसी का होता था। बाद में ही लगता है कि ये राम जी की उसमें कथा जोड़ दी गई है। तो जरा इस पर नहीं जी, विजयदशमी के दिन ही राम जी ने विजय प्राप्त किया है। अच्छा, ठीक। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन स्वामिनी जी, जो आपने भृग ऋषि की कथा सुनाई थी, वो कथा कहाँ पर है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? I had a book in which there was this katha of Bhagwan ki. Yeah. Okay. I don't remember which is the book, but it was a book on Bhrigu Maharaj, and this was the katha in that. Okay. ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, प्रश्न? स्वामी जी हरिओम। मैं हमेशा चिन्मय मिशन में सुनता रहता हूँ, और एक आपने जैसे बताया कि रात्रि विश्राम के लिए होती है, रात्रि में रिजनरेशन होता है, ये है। पर कई बार जैसे हम लोग सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता होता है 24 घंटे में, और रात्रि को कुछ लोग कलयुग बोलते हैं कि सभी क्राइम्स रात में होते हैं, नेगेटिव थॉट्स रात में ज्यादा होते हैं। इसके संबंध में आपका कुछ प्रकाश डालें। हाँ जी, अभी देखिए, हर समय की महत्वता होती है।
हर समय की अपनी अपनी महत्वता होती है। जैसे दिन की महत्वता होती है वैसे ही रात की महत्वता होती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त की महत्वता होती है वैसे ही दूसरे समय की महत्वता होती है। जैसे संध्या काल की महत्वता होती है वैसे ही दूसरे काल की भी महत्वता होती है। तो हमने यहाँ रात्रि की महत्वता बताने की कोशिश की। ऐसे भी कहा रात्रि अंधकार की प्रतीक है, अज्ञान की प्रतीक है, वो भी बताया। तो उसमें दोनों चीज होती है। जैसे कि दिन में जैसे कहा कि रजोगुण बढ़ता है, तो बढ़ता है तो उसमें एक देयर इज दिस आल्सो ना, एक नेगेटिविटी भी हम कह सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें एक पॉजिटिविटी भी है ना, कि जहाँ सब स्पष्टता आती है। दिन में क्या होती है, सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हर समय की एक महत्वता होती है ना। तो रात्रि की भी महत्वता होती है और ब्रह्म मुहूर्त की भी महत्व होती है। ऐसा नहीं कि हर कोई एक समय खराब ही है और एक समय अच्छा ही है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हर समय की अच्छा होती है और अच्छा नहीं भी होता है। हर समय के दोनों पक्ष होते हैं। हरिओम प्रणाम। और दूसरी एक बात एक समझने की है, बहुत सुंदर बात है कि रात्रि की एक ये है कि बोले 4 लोग रात में सोते नहीं है। 4 लोग रात में सोते नहीं है और कहते हैं नवरात्रि में सब लोग जागते हैं, जागना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या होता है, मेरा कहना मैं भूल गई। बोले 4 रोग, बोले एक रोगी है ना वो सोता नहीं है, क्योंकि रोग से पीड़ित होता है और उसके लिए रात्रि बहुत लंबी चलती है। उसको लगता है कि कब दिन हो जाए, कब दिन हो जाए। और आपने देखा होगा कि जो जो दुखता है ना अंग शरीर का, रात को बिल्कुल एकदम जोर से वो निकल आता है। दिन में इतना नहीं दिखता है, वो रात को पता नहीं कहां से उसको कैसे समझ में आ जाती है कि रात हो गई, तो वो दुखने शुरू हो जाता है। तो बड़ा कष्ट होता है और ऐसी लंबी लगती है रात की, कब खत्म हो जाए ऐसे लगता है। रोगी है, सोता नहीं है। फिर भोगी है, वो भी नहीं सोता है और उसके लिए भोग में रात इतनी जल्दी चली जाती है कि पता ही नहीं चलता उसको, रात चली गई, भोग में आनंद में चली गई। तीसरा जो होता है वो योगी होता है, वो भी रात में सोता नहीं है। वो क्या करता है, साधना करता है, योग करता है और जागृत रहता है, और वो है वो भी सोता नहीं है। और जो चौथा है वो ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी का जागरण बहुत अलग है। वो ज्ञानी का जागरण क्या होता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, ऐसे गीता में कहा है। इसका अर्थ क्या है, जो जगत सबके लिए दिन जैसा है, वो जगत के प्रति वो क्या है, वो सुप्त है, उनको कुछ इसमें कोई बड़ी चीज नहीं लगती है। लेकिन जो आत्म तत्व के प्रति सब लोग सोए हुए हैं, उस आत्म तत्व के प्रति ये ज्ञानी पुरुष हमेशा जागरूक होता है। तो ऐसा ज्ञानी भी जो होता है वो हमेशा जागता है, उसका अर्थ है। अभी जो रात को जागना होता है उसका अर्थ क्या है, जागना यानी सिर्फ जागना नहीं है, इसका अर्थ होता है कि जागृत होना है। We must be alert. That is a very very important quality. We should be always alert. इसलिए स्वामी अखंडानंद महाराज करके बहुत महान संत हो गए, मुझे उनका ये वाक्य बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने क्या कहा, सावधानी का नाम साधना है। तो क्या होना चाहिए हमारे, साधना यानी क्या, सावधानी, अलर्टनेस ऑफ द माइंड, जागरूकता। Our mind should be very much alert and जागरूक. This is how we should be. So नवरात्रि का अर्थ ये भी है कि हम नौ रात जागते हैं, यानी जीवन हम जागरूकता से जीते हैं। This is the meaning. जब हम उपासना करते हैं, we live a life which is very alert and aware and full of life. That is how we have to live our life. इसलिए as I had already sent to Gupta ji, I am having a very special shibir. For it's called मंत्र साधना रिट्रीट। तो 8 हफ्ते के लिए जप की साधना पर भार देते हुए एक 7 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक का एक शिविर होने वाला है कोयम्बतूर के आश्रम में, जहां यहाँ मैं रहती हूँ, वहां हम करने वाले हैं। मंत्र पर भार होगा, जप पर भार होगा, पूरा जो है समय, जितना समय हो सके इतने, और उसके साथ साथ में थोड़ा वेदांत का ज्ञान, जैसे मैंने अभी 2 ज्ञान दिया, वो ज्ञान भी होगा, भक्ति की बात भी बताई जाएगी, और मंत्र पर भार होते हुए ये पूरी शिविर करने वाले हैं। 8 हफ्ते का शिविर है, लेकिन कोई 8 हफ्ते न आ पाए
इसलिए कम से कम 3 हफ्ते के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 हफ्ते के बिना अगर करेंगे तो साधना सफल नहीं होगी। इसलिए तो 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks, 7 weeks or the full camp of 8 weeks. If anyone wants to come, Gupta ji will please send it, if you can, on your WhatsApp or something, send it to everyone. They can all take a look at it. And if anyone feels like coming for that, if you all are more than welcome for coming for this camp. We are having it in this ashram. It's a beautiful place and a beautiful ashram. You will get a very good chance to do sadhana. जैसे नवरात्रि की साधना हम करते हैं, ऐसे ये भी जो है मंत्र साधना जो है, because साधना करते हैं ना, see, लोग कहते हैं हमको टाइम नहीं है, जो भी हमको कहते हैं ना, हम हमेशा सबको कहते रहते हैं कि we are all Hindu by birth. मैं पूछती हूँ, are you a Hindu by birth? तो सब कहते हैं हाँ. Then I ask, are you a Hindu by belief? तो कोई कहते हैं हाँ, बट अगर पूछा जाए कि हिंदू बिलीफ क्या होती है तो हम कह नहीं पाते हैं. एंड तीसरा जो सवाल हम पूछते हैं, आर यू हिंदू बाय प्रैक्टिस? Then a lot less people number of say no. So here is a chance to become really good, like understand what we are doing also. हम बहुत भार देते हैं इसलिए ज्ञान पर कि समझ कर करो, करना important है, लेकिन समझ कर करना ज्यादा important होता है. Understand and do it, give it, then only we will have that feeling towards it. We'll feel proud of it, we'll feel निष्ठा पूर्वक हम कर सकते हैं. तो ये जो जप साधना है उस पर बहुत ही ज्ञान, पहले 3 दिन तो सिर्फ ओरिएंटेशन हम करेंगे कि हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, व्हाई यू डू इट, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू डू इट, उसका पूरा का पूरा विवेचन होगा. उसके बाद में 50 दिन का एक अनुष्ठान करेंगे और लास्ट 3 दिन जो है वो पूर्णाहुति के 3 दिन होंगे. इस प्रकार से करेंगे. जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं एक कथा हमेशा कहती हूँ. एक लकड़हरा था, a wood cutter. So his friend, he was cutting a tree. His friend said, "Come, let's go for a movie." उसने कहा नहीं, मुझे बहुत सारे पेड़ काटने हैं. तो उसने उसने कहा कि अरे छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद में आकर करो. बोले नहीं, मुझे करना है. तो फ्रेंड चला गया पिक्चर देखने के लिए. वापस आया तो देखा कि वो वुड कटर वही पेड़ को काट रहा था. अरे बोले तू क्या करता है, अभी भी वही पेड़ को काट रहा है, तो क्या तू आराम कर रहा था? बोले नहीं, आराम नहीं कर रहा था, उसी को काट रहा था. तो उसके फ्रेंड ने देखा कि उसका जो कुल्हाड़ व्हाट इज इट, एक्स जो था ना, तो वो बिल्कुल ब्लंट था, उसकी जो शार्पनेस ही नहीं थी. तो उसने कहा, अरे व्हाई डोंट यू शार्पन योर एक्स and then this cut the wood. He says, no, I have no time for sharpening my axe. ना, हमारी हालत बिल्कुल ऐसी ही है. हम कहते हैं हमको टाइम नहीं है, किसके लिए? ये शार्पनिंग करने के लिए टाइम नहीं है. कहते हैं ना, सुबह में हमको टाइम नहीं मिलता है. बट वही अगर ये कर दिया, हमारी साधना कर दी और उसके बाद में काम में जाएंगे, तो हमारा जो ये मन है ना, इतना तैयार हो जाएगा कि जो भी काम है वो जल्दी से हो जाएगा और सफलता से हो जाएगा. तो ये साधन, हमारा मन एक साधन है, उसको तैयार करने के लिए जो हम करते हैं उसी को साधना कहते हैं. और वो हमारे जिंदगी का हर रोज का भाग होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वंस इन अ वाइल, कि हर रोज का भाग होना चाहिए. अगर वो हो सके, our mind will be a beautiful mind. So that we can make this mind a very ready mind. ये साधना की शिविर बनाई गई है. So I welcome all of you to come for that. If you have any more questions, we have 5 more minutes, 10 more minutes. I can answer you. Yes. चलिए, बहुत धन्यवाद स्वामी जी. मैं बोलता हूँ, I don't see there are any specific questions about your talk. Omji, can I add anything to this? Sorry to interrupt. Yes, please. स्वामिनी विमलानंद मैम, आपने जो भी बातें बताई बहुत अच्छी लग रही थी. I just wanted to add one thing when you said about South India. I was talking to Omji in the personal chat. यहाँ पे एक ट्रेडिशन है स्वामिनी कि हम लोग ना अपने घरों में खिलौने सजाते हैं. बोलू. हाँ, I already mentioned that. I just mentioned it. Yeah. I'm here for the past 28 years and I'm very familiar with all the customs and yes, yes, Swamini. That's why it said no. It's called Golu. It's called Golu with all the Golu. Yes. हम लोग कोलुगु बोलते हैं. हाँ, बोम्मल कोलुगु बोलते हैं. बोम्बला और कोलुगु whatever. हाँ.
Right, that's right. Once again, thank you एक so सवाल much. हाँ, सूरज जी कहिए। स्वामी जी, बहुत अच्छा प्रवचन आप किए, बहुत ज्ञानवर्धक। मैं द नेदरलैंड से बोल रहा हूँ और मेरे पूर्वज कहीं बिहार यूपी बॉर्डर से 150 साल पहले गए थे, आए थे आप सूरीनाम, कहाँ साउथ रहते हैं? अमेरिका, कहाँ आपने कहाँ? कहीं यूपी और बिहार के बॉर्डर से, नहीं, मुझे आप ठीक कहाँ पता रहते हैं? नहीं। अभी कहाँ रहते मैं हैं? द नेदरलैंड्स, हॉलैंड में। कहाँ? नेदरलैंड्स। द नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स, ओके, वंडरफुल। हाँ, हाँ। हाँ। तो हमारे यहाँ प्रथा है नवरात्रों में लपसी रोटी का, पता नहीं आपके यहाँ भी है, और ये कैसे शुरू हुआ? अगर इस पर कुछ प्रकाश डाल सके तो बहुत अच्छी बात होती। आई डोंट नो व्हाट इट इज, जरा थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या है। अच्छा, रोटी में एक मिठाई रखते हैं तो उसे चढ़ाते हैं देवी को। अच्छा अच्छा। हम कहते हैं लपसी रोटी, और हमारे यहाँ सभी करते हैं, पर किसी से पूछे कि ऐसा क्यों, तो किसी को पता नहीं। हाँ, नहीं देखिए, अच्छा। हम लोग है ना, तो सब अलग अलग प्रकार के खाने बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो वहां आपके वहां क्या हुआ होगा कि किसी ने ये मिठाई है ना, उसको थोड़ा छिपाना होगा तो रोटी में डाला होगा शायद। आई एम जस्ट मेकिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी के लिए। दूसरा ये है कि देवी को छुपा के देना, बताना नहीं। नहीं, देवी मैं को छुपा, देवी तक को छुपा तो नहीं सकते, हम एक दूसरे से ही छुपा सकते हैं। भगवान को तो वही सब मतलब है कि दूसरा हमारी कॉपी ना कर ले। चलिए, अपना समय हो रहा है, हम आप सबसे मेरा निवेदन है कि जरा थोड़ा अनम्यूट करके 1 मिनट जरा स्वामी जी के लिए थोड़ी तालियां हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत अच्छा। असल में आपने हर चीज को खोला है ना, वो बहुत अच्छा There लगा। are a lot of my talks on the YouTube also. You can please go on to them and you can listen to them also. That is possible. Please visit YouTube and listen to them. And And also, if you can come, if any one of you can come to the Shibir that you I'm want to talking sharpen about. the axe, well, let's go to Coimbatore. We can sharpen our axe, which is also blunt. That would be wonderful. And we will request you, Swamiji, again in next few months to come and bless us with your knowledge, since we are pretty close to time. So thank you so much. I will take just 2-3 minutes for our future activities. So next week, on 23rd October, and the following week, 30th of October, we will have Ram Kavya Goshti. So about 40 poets will have written their own poems on Lord Ram and his Leela, and they will recite their poems. अभी आपने बताया था कवि और कविता के बारे में. So that was very interesting, as they're like synonymous of each other. That's how I got it, but the way you said. And that inspired me to, pull out from my files something that I wrote years ago. And if with your permission, I would like to read that. Maybe it will take probably a minute or even less than that. So poet or poetry में क्या फर्क है? So the title of this poem is कविता या कवि. तो कविता बड़ी या कवि बड़ा? कविता बड़ी या कवि बड़ा, पूछो मेरे भाई, उलझन कैसी आन पड़ी समझ न मेरी आई. कवि के बिन कविता नहीं, कवि के बिन कविता नहीं, बिन कविता न कवि. स्वामी जी ने जी हमें आज ये बात बताई, वही मैं दोहरा रहा हूँ. रवि बिन जैसे दिन नहीं, पर क्या दिन बिन रवि अस्तित्व. रवि बिन जैसे दिन नहीं, क्या दिन बिन रवि अस्तित्व. फूलों की खुशबू का बयां कविता से करता है कवि. कवि जो सुंदर कविता करे, बनती तब है उसकी छवि. Or I think the last two lines probably explain the difference, or it doesn't explain the difference. कवि कविता के फेर में, कवि कविता के फेर में क्यों पढ़ते हो भाई. कवि कविता के फेर में क्यों पढ़ते हो भाई. कविता का आनंद लो, दिल से कवि ने रचाई. So कविता का आनंद लो, दिल से कवि ने रचाई. क्या फर्क है कवि और कविता में? कोई फर्क नहीं. So just echoing whatever you Shamini mentioned. So next 2 weeks we will have a Kavita, Kavya on Bhagwan Ram. So please come. And one final announcement I'll make, because of Vijayadashmi, we will, this is 75, somebody has their mic जरा आप off करिए ना. आपके यहाँ से आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है? Some voice is coming. So some sound is coming from somewhere, but just 2 minutes, we're almost done.
this is 75th years of our independence. To our tribute to our Bharat Mata, Mataji ki Swami ji ne baat ki thi. So we will be compiling a collection of poems on our country, on Bharat Mata. And we have very ambitious goal, and Durga Maa Shakti Pradhan kare is avsar par. We want to compile 1,947 poems. Now you know where the number 1947 comes from. So in all Indian languages, on India and its culture. And I will just take a 1 second share screen on that to show you what we have in mind. So this will be, the book will be called Bharat Kavi Piyush. It will be a compilation of 1,947 poems because of the year of our independence. And भारत से संबंधित कोई भी विषय, भारत का इतिहास, भूगोल, साहित्य, संस्कृति, शायद दोबारा गया, सॉरी अबाउट दैट, महापुरुष, भारत के धर्म, स्वतंत्रता संग्राम, भविष्य, भाषाएं, गरिमा, आधुनिक भारत और जो भी भारत में, एंड इन ऑल लैंग्वेजेस, यू नो, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आसामीज हो, गुजराती हो, मराठी हो, and we will send you a lot more information on that in the coming days. But today, in Swamiji's presence, I want to take your blessing, Swamiji, for this project. It's a very, very ambitious project. This will be our service to the nation. And we have got, as you can see, scholars here who are coming from UK, Canada, Surji is from Netherlands, and of course, from India and many, many other countries. So we seek your blessings for this project. And today I formally announce that. And with that, Swamiji, if you have any last word for blessings for us, and then I will request Mayaji to close. I only pray for the well-being of everyone. May everyone be happy, and may everyone achieve whatever goal they want in that. Hari Om and Namaskar. धन्यवाद. धन्यवाद. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति.